Hello dear students and welcome back to my channel. So this video is very important students regarding TS EPSET. All instructions regarding EPSET, what to bring, what to carry, everything will be given over here. So the last date to apply for TS EPSET is already over on 24th April along with a late fee of rupees 5000. So the admit cards were available to students right from 19th April onwards for agriculture and pharmacy and for engineering students from 22nd April onwards. Now students are still confused regarding the dates. So let me clarify students once that TS EPSET exam for agriculture and pharmacy students will be conducted tomorrow on 29th April and also on 30th April, whereas TS EPSET exam for engineering students will be conducted on 2nd May to 4th May. So students, on your hall ticket, which date is printed, on that date itself you have to attend the CBT exam. So students, if you have doubt regarding CBT exam, there is a video which I made on exactly how your screen looks like. Uski link comment section mein hai. Do check it out immediately. So many students still don't know from where they have to download the hall ticket. So here I am on the official website of EPSET. So students, if you go down, you can see download hall ticket, E and A and P. E means engineering, A and P means agriculture and pharmacy. So when I click on it, I can see the hall ticket page. I just need to enter my registration number, qualifying exam hall ticket number and date of birth and get my hall ticket. This link is given in the comment section. You must download it as soon as possible. Now let us see the instructions for tomorrow. Firstly, what materials are we supposed to carry on the day of the exam? So the main thing for the exam is your hall ticket. Definitely you have to carry that, without which they'll not allow you. Then एक प्रिंट आउट आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपने एपसेट के लिए फीस भरी थी उसका एप्लीकेशन फॉर्म, और उस फॉर्म के ऊपर आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगी होनी चाहिए, और स्टूडेंट का लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन उस पर लगा होना चाहिए एटलीस्ट 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। जहाँ पर स्पेस प्रोवाइडेड है एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ पर लगाना है। तो स्टूडेंट को सबमिट करना होता है ये एप्लीकेशन फॉर्म इन्विजिलेटर को साइन करने के बाद इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में, यानी कि इन्विजिलेटर के सामने आपको साइन करना होता है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। पहली बात तो ये आपको हॉल टिकट सेफली रखना है बिकॉज वो नॉट ट्रांसफरेबल है। मीन्स अगर ज़रा सा भी वो फट जाए या फिर उसकी टैम्परिंग हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कैंडिडेट्स को एटलीस्ट 90 मिनट्स पहले रहना होगा एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम शुरू होने से 90 मिनट पहले, और एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। एंड ट्रस्ट मी, दिस TCS आयोन सेंटर्स बहुत फार होते हैं एंड यू हैव टू रीच देयर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर, अदरवाइज ट्रैफिक में फंस के। सो माई सजेशन टू यू इज़ डू नॉट टेक एनी रिस्क। अब दूसरी क्या चीज़ें हैं जो कैंडिडेट को लाना है। कैंडिडेट एक ब्लू पेन या फिर एक ब्लैक पेन कैरी कर सकता है, क्योंकि आपको एक रफ शीट दी जाएगी मैथ्स के कैलकुलेशंस करने के लिए, एंड दैट रफ शीट ऑल्सो यू हैव टू सबमिट टू द इन्विजिलेटर बिफोर लीविंग। एंड समटाइम्स फॉर स्पेसिफिक कास्ट यू रिक्वायर अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स। सो जस्ट रिमेंबर हॉल टिकट, बॉल पॉइंट पेन, filled in online application form with a colored fixed photo passport size and left hand thumb impression. Remember, the candidate must not bring any other material. कोई भी किस्म की लॉग बुक, कैलकुलेटर, पेजर्स, सेलफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब कुछ एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास ये सारी चीज़ें पाई गई जो कि फॉरबिडन है, तब उसे एग्जाम सेंटर से बाहर भेज दिया जाएगा। ऑब्वियसली CCTV कैमराज होते हैं, दे विल बी मॉनिटरिंग यू। सो स्टूडेंट्स, आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ना है क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता आपको अपनी सीट पर ही रहना है स्टूडेंट्स। कोई भी केस में आप अपनी सीट से उठ नहीं सकते। जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसमें 160 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस, दैट इज MCQ क्वेश्चंस। फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपको 3 सेक्शंस दिखाई देंगे, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन एग्रीकल्चर एंड फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए 4 सेक्शंस नजर आएंगे, दैट इज zoology, botany, physics and chemistry. Students, you have to answer all the questions. All questions carry equal marks and there are no negative marks for incorrect answers. अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस क्या फॉलो करने हैं। एग्जाम टाइम आपको 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे दिया जाएगा।
ऑलरेडी आपकी जो एग्ज़ाम लिंक होगी वो आपकी लॉगिन स्क्रीन से कनेक्टेड होगी, आपके सिस्टम पर वो रेडी होगा। तो जैसे ही आप सीट पर बैठते हो मेक श्योर कि आपकी स्क्रीन रेडी है, अगर नहीं है तो इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो। एग्ज़ाम टाइम शुरू होने से 15 मिनट पहले ही आपकी लॉगिन करवा दी जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है। आपके खिलाफ सिवियर एक्शन लिया जाएगा अगर आप पकड़े गए क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए, फिर चाहे वो क्वेश्चंस हो या फिर ऑप्शंस। नाउ लेट अस सी जनरल इंस्ट्रक्शंस। जो क्लॉक होती है वो कंप्यूटर स्क्रीन के सर्वर पर लगी होती है। आपके स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप लॉगिन करोगे, और वो चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, दैट इज आफ्टर 180 मिनट्स। जैसे ही टाइम 0 पर आ जाएगा, मीन्स द टाइम इज ओवर, तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्जाम की स्क्रीन बंद हो जाएगी और आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू स्टेटस पर रखते हो, इसका मतलब ये है कि आप वापस उस क्वेश्चन पर दोबारा विजिट करोगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने ऑलरेडी कर दिया है लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू रखा है और सडनली आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, तो जो भी आपने आंसर उस क्वेश्चन का दिया होगा तो उसे कंसिडर किया जाएगा इवैल्यूएशन के लिए। तो क्वेश्चन पैलेट के लेफ्ट साइड पर आपको एक एरो मिलेगा जिसको क्लिक करने पर आप मैक्सिमाइज कर सकते हो क्वेश्चन की विंडो को, और अगर फिर से आप क्वेश्चन पैलेट को देखना चाहते हो देन अगेन क्लिक ऑन दैट एरो विच अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन विंडो। आप स्क्रॉल भी कर सकते हो ऊपर या फिर नीचे स्क्रॉल डाउन ऑप्शन का इस्तेमाल करके। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना होता है क्वेश्चन नंबर पर, जो कि क्वेश्चन पैलेट में होता है। ये क्वेश्चन पैलेट राइट साइड पर होता है आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ग्रे कलर में 1 to 160 क्वेश्चंस लिखे होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को विजिट किया है तो ये ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। नहीं स्टूडेंट्स, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से कोई एक आंसर को सेलेक्ट करना होगा एंड सेव क्लिक करना होगा, दैट इज सेव एंड नेक्स्ट। तभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओगे, करंट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समटाइम्स हम अपने आंसर को लेकर श्योर नहीं होते तो वी कैन जस्ट सेलेक्ट एन ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, और फिर बाद में जब सारे क्वेश्चंस हो जाएं तब वापस इस क्वेश्चन नंबर पर आ सकते हैं। अब क्या प्रोसीजर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर करने का? नंबर 1, टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक ऑन द बटन ऑफ वन ऑफ द ऑप्शंस। Number 2, to deselect your chosen answer, click on button of the chosen option again or click on clear response button. To change your chosen answer, click on the button of another option which you feel more appropriate. Then, to save your answer, you must click on the save and next button. To mark the question for review, click on mark for review and next button. If an answer is selected for a question that is marked for review, that answer will be considered in the evaluation. To change your answer to a question that has already been answered, first select that question for answering and then follow the procedure for answering that type of question. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है स्टूडेंट्स, सिर्फ वही क्वेश्चंस जो कि आंसर किए गए हैं और सेव किए गए हैं या फिर मार्क किए गए हैं फॉर रिव्यू, मार्क्स देने के लिए बस उन्हीं क्वेश्चंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, मींस कंसिडर किया जाएगा। तो जिन सब्जेक्ट्स में आप एब्सेट लिख रहे हो उन सब्जेक्ट्स को ऊपर टॉप स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा। हर सब्जेक्ट का अलग सेक्शन होता है, तो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में एग्जाम स्टार्ट करना चाहता है उस सब्जेक्ट पर ऊपर क्लिक करें एंड देन आंसर दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। जो भी सेक्शन आप स्टार्ट करते हो वो ऑटोमेटिकली ऊपर ब्लू में हाईलाइट हो जाता है। तो एक बार किसी भी सब्जेक्ट के सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन पर आप सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देते हो तब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हो नेक्स्ट सेक्शन के। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पूरा सेक्शन कंप्लीट करना है तभी आप अगले सेक्शन पर जा सकते हो। स्टूडेंट अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन किसी भी टाइम एग्जाम के दौरान, और स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, ही कैन लुक इन द क्वेश्चन पैलेट। Now, what is the dress code for tomorrow? So students, as of such, there's no official dress code, but still you must dress simple. You are going for an exam, so you must be decently dressed up. Try to wear simple cotton clothes, light-weighted, and do not wear shoes because they'll ask you to remove it. Wear simple sandals or chappals. Do not put on heavy makeup as it's very hot, students, and do not wear heavy clothes.
clothes that have multiple pockets, do not wear earrings, do not wear bracelets, watches or any other accessories. They will do frisking students, they'll touch and check you, so they'll have a machine as well. So all these accessories will just delay your entrance into the examination hall. Apart from a blue pen, no other stationery item is allowed inside. And as far as talking about water bottles, you cannot take it inside your exam hall. So from your home till your exam center, you can carry a plastic water bottle, and then before entering, you must leave it outside only. As inside, water will be provided, water dispensers would be there. Now some students are worried regarding abaya or burqa or niqab. Are you allowed or not? Okay, you can wear your abaya or burqa, whatever you're wearing, but at the time of scanning your face, you need to show your ears. So they will ask you to remove the headscarf. So once the scan is done, after that you can wear it again. So students, instead of wearing a niqab, you can wear a mask instead. It's easy to remove. So students, once more I'm showing the list of things you need to carry. Please take a note of it, and all the best for your exam.